Hi, hello, good evening. Welcome back to the another video of Physics Destination. Here, finally, we have the C and R rule. We have eagerly waited for this notice, and finally, we got it. And what is the C and R new rules? I will explain you each and everything, and I will explain in English as well as in Hindi. Have patience, and this video will be quite long, but I will try to explain in details in Hindi as well as in English. Have patience and sit. Before going to start my video, I request all of you please like, share and subscribe to our channel. Let's start the video. Here title is the rules may be called as कर्नाटका एजुकेशन डिपार्टमेंट सर्विस. इसे हम कर्नाटका एजुकेशन डिपार्टमेंट सर्विस भी बुला सकते हैं या फिर डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शंस भी कह सकते हैं. सी अमेंडमेंट. As you know, in Karnataka Education Department Service, the rules 1967 in the schedule under the heading Class 3 non-gazetted posts for the entrance relating to the category of the postgraduate primary school teacher for the class 6 to 8 as a serial number 66A. So ये अमेंडमेंट एक्ट का जो है दिया गया है. यहाँ से सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ से शुरू होता है. तो 67% by direct recruitment and 33% by in सर्विस रिक्रूटमेंट. यहाँ पे 67% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगा और 33% इन सर्विस रिक्रूटमेंट. इसका मतलब यह है जो ऑलरेडी टीचर्स हैं उन्हें प्रमोट किया जाएगा और 67% न्यू कैंडिडेट्स जो एग्ज़ाम के ज़रिए लेंगे. तो यहाँ पे इसका प्रोसीजर देख लेंगे. फर्स्ट, for the direct recruitment and in service qualification. Okay, by direct recruitment applications, calling of applications. यहाँ पे क्या होगा? First I will discuss what are the qualifications. Okay, for direct recruitment qualification is graduate degree with minimum 50% aggregate marks. ओके यहाँ पर आपकी ग्रेजुएशंस में मिनिमम 50% अग्रीगेट होना चाहिए. And 2 years of diploma in elementary education, DED or BEd, or graduate degree with minimum 50% aggregate marks, and bachelor in education or bachelor in special education. So यहाँ पर थर्ड ऑप्शन PUC with minimum 50% of marks. PUC में मिनिमम आपके 50% मार्क्स होने चाहिए. और 4 year बैचलर एलिमेंट्री एजुकेशन और 4 year बैचलर एजुकेशन. इनमें से अगर कोई भी आप हो देन पॉसिबिलिटीज आर देयर दैट यू विल सेलेक्ट. सो बाय डायरेक्ट रिक्रूटमेंट व्हाट दे विल नो, द डेप्यूटी डायरेक्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन ऑफ द रेस्पेक्टिव एजुकेशनल डिस्ट्रिक्ट्स. तो जो डेप्यूटी कमिश्नर है रेस्पेक्टिव डिस्ट्रिक्ट्स के और अदर्स ऑफिसर्स जो दूसरे ऑफिसर्स हैं वो सारे मिला के they have taken one decision that after taking into the consideration number of vacancies available in the concerned education district for each of the categories of the specified at the serial number 1 to 3 in the column 2, and medium of instruction shall give wide publicity by published in the notification in the official gazette and also advertising in the least 2 leading newspapers having wide circulations inviting eligible candidates to apply in the form and manner specified for the purpose along with the fees may be specified therein for the purpose of procurement under the rules. So you have to fill the application. They will take respective fees. So here जो मेन पॉइंट्स हैं वो डिस्कस करेंगे क्योंकि नोटिस बहुत लंबी है. सो आई थिंक यू ऑल्सो हैव नो पेशेंस फॉर टू लॉन्ग वीडियो. सो जो मेन पॉइंट्स हैं वही डिस्कस करते चलेंगे. सो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के बारे में तो आपको बताना ज़रूरी नहीं है क्योंकि आप सब लोग जानते हैं. फर्स्ट आपको एप्लीकेशन फिल करना होगा. लेटर ऑनवर्ड्स वो आपको सेंटर्स देंगे. ठीक है, दे विल सेलेक्ट अ सेंटर एंड यू विल हैव द कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम लाइक TT. So you know well about it. नेक्स्ट, सिलेबस डेट टाइम प्लेस आपको मेंशन किया जाएगा.
in the further notification. Okay, no need to bother about that. Now for the post of graduate primary teacher, लैंग्वेज टीचर. ओके, लैंग्वेज टीचर्स के लिए जो रिक्वायरमेंट है वो मैं आपको फर्स्ट डिस्कस करूँगी. तो लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड आपको स्टडी करना है, और यहाँ पे कुछ लैंग्वेजेस की लिस्ट दिया गया है. इनमें से एक आपका ऑप्शनल लैंग्वेज होना ज़रूरी है, जैसे कि कन्नड़ा, इंग्लिश, हिंदी, मराठी, उर्दू, तेलुगु, तमिल, मलयालम. सो यहाँ पे आप लिस्ट देख सकते हैं, साइंस और जियोग्राफी. ओके, सो इन द बी सेक्शन, स्कोर मिनिमम ऑफ 50% एग्रीगेट. आपके मिनिमम 50% एग्रीगेट होना चाहिए, और प्रैक्टिस टीचिंग मेथड ऑफ द टीचिंग एटलीस्ट इन द कंसर्न लैंग्वेज इन द डिप्लोमा और बैचलर. आपकी जो कंसर्न लैंग्वेज है उसमें आपको एटलीस्ट 2 years ऑफ प्रैक्टिस की ज़रूरत है. ओके, सो डिग्रीज इन द टीचर एजुकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ ग्रेजुएट प्राइमरी टीचर्स, मैथमेटिक्स एंड साइंस. सो मैथमेटिक्स और साइंसेस के लिए मिनिमम आपको 3 years ऑफ इन द मैथमेटिक्स फिजिक्स कंपलसरी 3 years ऑफ ग्रेजुएशन होना बहुत ज़रूरी है. ओके, यहाँ पे लिस्ट है: केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, स्टैटिस्टिक्स, ज्योग्राफी, होम साइंस. जो आपका टीचिंग मेथड है, जो आपका ऑप्शनल है, उसमें भी आप 3 years कंपलसरी you must have studied. Okay, graduates must have scored minimum of 50% aggregate. तो यहाँ पर इंजीनियरिंग का शेड्यूल दिया गया है, वहाँ पे ग्रेजुएशंस में अग्रीगेट मिनिमम 4 years की जो ग्रेजुएशन होती है, मिनिमम 50% ऑफ अग्रीगेट्स होना चाहिए. सो दे हैव ऑल्सो रूल्स, और यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट्स. Next, here one more important thing I wanted to discuss with you people. For the post of graduate primary teacher, biological sciences, जो बायोलॉजिकल साइंसेस है, लाइक zoology टीचर हो सकते हैं, बॉटनी टीचर्स आपके. तो एज इन केस you have lot of candidates or lot of pupils and you need one more teachers, then they will select the then they will select the biological sciences teachers. उसके लिए रिक्वायरमेंट्स क्या हैं? तो 3 years ऑफ ग्रेजुएशन ज़रूरी है. बॉटनी, जोलॉजी, सेरिकल्चर, एनवायरमेंटल साइंसेस, ये सारे आप स्टडी करना चाहिए. You must need these following subjects in your graduation. So graduates should have scored minimum 50%. यहाँ पे भी 50% स्कोर बहुत ज़रूरी है. और टीचिंग प्रैक्टिस, जैसे कि आप हर कॉलम में देख सकते हैं, आप BEd इज़ कंपलसरी, और टीचिंग प्रैक्टिस या फिर डिप्लोमा कोर्स, जैसे कि आप नोटिस में देख सकते हैं, ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी है. फर्दर अगर आपको डिटेल्स में, क्योंकि टाइम बहुत कम है, तो मुझे कम से कम टाइम में ये सारी नोटिस एक्सप्लेन करनी होगी, तो मैं आपको बहुत शॉर्टकट में लेकर चल रही हूँ. तो यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट. अगर समझने में कोई दिक्कत हो रही है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप. अगर आपको डिटेल में चाहिए तो मुझे कमेंट करके बताइए, मैं और एक वीडियो इसके ऊपर बनाऊंगी. तो बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू फॉर वॉचिंग. यहाँ पर एज लिमिट भी है, यू कैन स्टडी विथ डिटेल्ड. And one more thing I forgot to tell you, here we have the pay scale. Okay, salary. Let's discuss within 1 minute. See, graduate primary teacher for 6 to 8 pay scale 27,000 to 57,000. Okay, I will discuss here round figure. And total number of posts 52,630. Okay, and graduate primary teacher language teacher, यहाँ पे पे स्केल होगी 27,000 to 52,000. ओके, एंड फॉर साइंस टीचर्स लाइक बायोलॉजी एंड अदर साइंसेस, यहाँ पे पे स्केल होगी 27,000 to 52,000. ओके, तो ये था पे स्केल.
सो आई होप आपको कुछ जानकारी मिली होंगी, मेरे इस वीडियो से कुछ हेल्प हुई होंगी. इफ़ यू वांट in details, comment me. I will make the video of detailed instructions. Thank you for watching.